students, how are you? Hope you all are fine. So today we are going to start the second video on capacitance. Hope you all have seen the first one. What is capacitance and related things we have studied in the first video. In the second video, we are going to study the remaining part. So today's topic will start with the combination of capacitors. Combination of capacitors means how we can combine the capacitors. In class 10 we have studied about combination of resistors. Again we study in class 12 later on. Now see, these two parallel lines are the symbol for capacitor. Okay, don't confuse with cell. Cell is what? Small and big for negative positive. But for the capacitor we use the same length, same size. Both are of what? Same size. So let us consider three capacitors. This is one. In series, this is another. In series, this is another. And these three capacitors, let us assume कि इसका capacitance C1 है, इसका C2, इसका C3, and they are connected by a electric source, electric supply, electric source, and the whose potential difference is how much? V. अब होता क्या है कि मान लो यहां से Q चार्ज निकला, ये Q चार्ज के कारण ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव बन गया. तो जब ये प्लेट पॉजिटिव बनेगा ये इसको नेगेटिव इंड्यूस करेगा. जब ये नेगेटिव बनेगा तो ये इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर जाएगा तो इसको पॉजिटिव बनाएगा, तो ये फिर नेगेटिव इंड्यूस करेगा, फिर इसका चार्ज इसको पॉजिटिव बनाएगा और ये नेगेटिव होगा. तो इस तरीके से ये पूरा प्लेट, पूरा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है. अब हम लोग को ये देखना है क्या कि Q चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू ईच कैपेसिटर. अब मान लेते हैं कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 है. तो V1 का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स? Q1 by C1. V2 कितना होगा? Q2 by C2. एंड V3 कितना होगा? Q3 by C3. ओके. अब मान लेते हैं कि ये जो पूरा सर्किट है उसका कैपेसिटेंस सेम है. कितना है? C है. लेट C बी द कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट. तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का रूल है. ये दिस इज द रूल फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर बोथ रेजिस्टेंस ऑल्सो एंड कैपेसिटर ऑल्सो. तो V इज व्हाट? Q by C. अच्छा, यहां पे प्रॉब्लम हो गया. द चार्ज विल बी सेम. सॉरी, प्लीज नोट इट डाउन. द चार्ज विल बी सेम बिकॉज दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन. इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम चार्ज विल फ्लो. तो इसका जो चार्ज होगा वही चार्ज इसमें जाएगा, वही चार्ज इसमें जाएगा. कोई और सोर्स नहीं है चार्ज के आने का या चार्ज के निकलने का. देयर इज ओनली वन पाथ. तो द सेम चार्ज विल फ्लो थ्रू ईच कैपेसिटर. तो ये चार्ज जो है वो सेम होगा. तो Q by C is equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. So if I take Q common and cut it, what will I get? 1 by C is equal to what? 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Okay friends? So what is the concept? Potential difference is divided. V is equal to V1 plus V2 plus V3 and the charge is same in all the capacitors. So this is the concept of series combination. So what is the formula? 1 by C equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. If there are more 4, 5, then this will go on. 1 by C4, 1 by C5, any number. Okay. So this is the formula for parallel series combination of capacitor. तुम लोगों को एक बार अगर तुम लोग क्लास 10 का बात याद आ रहा होगा तो देखना, वहां पे हम लोग क्या देखे थे कि 1 by R इक्वल टू 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3 कहां था? रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन था. तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का वो कैपेसिटर का सीरीज में होगा और जो सीरीज वाला होगा वो पैरेलल में होगा. ठीक है, चलो ये हो गया. अब चलते हम लोग नेक्स्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके स्टूडेंट्स, now what is parallel combination? See, here
you have one capacitor C1. Here there is also one capacitor C2, and here is also one capacitor. How much? C3. Now you see, this is what they are connected. Suppose this is all the positive plate. This is all the positive plate connected at one point A, and all these negative plate are connected at one point B. Okay, and this positive plate point and negative point is connected by a electric source. Okay, and let the potential difference of this will also be. Now whatever charge is flowing Q, let us assume Q charge is flowing. That Q charge will be divided in the three, because there are three pathways. So let us assume that through this Q1 is flowing, through this Q2 is flowing, and through this Q3 is flowing. Okay. So Q, and as all these three capacitors are connected between the same points A and B, इसका सबका पॉजिटिव एंड एक ही जगह पे है, तो ये सभी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, ये भी सेम पॉइंट पोटेंशियल पे है, तो इनके हर एक का बीच का, इसका मतलब जो इसका जो पॉजिटिव पोटेंशियल है इसका भी वही है, इसका भी वही है, उसी तरीके इसके का जो नेगेटिव पोटेंशियल है इसका भी वही है, इसका भी वही है। कहने का मतलब क्या हुआ, इन सबका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो इसका भी इसका भी और इसका भी, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। ओके, तो व्हाट इज Q1? तो Q1 का वैल्यू क्या होगा? Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 क्या होगा? C2V, और Q3 क्या होगा? C3V। ठीक है, तो यहां पे लिख लो, द चार्ज Q flowing through the electric source is divided among three capacitors. तो Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Now what is Q? Q is CV, C1V, C2V, C3V. Now take V and conquer it. So C is equal to C1, C2 plus C3. And if there are more, then there will be more. So you can see कि सीरीज इन कैपेसिटर द फॉर्मूला क्या है, वो रजिस्टर के उल्टा है। ऐसा हम लोग रजिस्टर में सीरीज में देखे थे, वो यहाँ पैरेलल में हो रहा है, और जो पैरेलल जैसा था वो सीरीज में हो रहा है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। वी विल यूज दिस इन द न्यूमेरिकल। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो है रिलेटेड टू डाइलेक्ट्रिक। हम लोग पिछले क्लास में बताए थे, पिछले वीडियो में, कि अगर डाइलेक्ट्रिक, इफ मान लो ये कैपेसिटर है, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसका कैपेसिटेंस C है, C0 मान लीजिए, और अगर इसके अंदर में हम एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो क्या होगा, इसका जो कैपेसिटेंस होगा दैट विल बिकम K टाइम्स C0. So what we have seen that on inserting a dielectric between the plates of a capacitor, the capacitance of the capacitor increases by a number, increases suppose K times. So if we insert a dielectric between the plates of capacitor and then we observe that the new capacitance is K times the original capacitance, means when there was no dielectric, then K is called the dielectric constant of the dielectric substance. Okay, then K is called what? The dielectric constant. Now what is dielectric? See, we know that current passes through a metallic conductor. Why? Because of the presence of free electron or conduction electron. So free electron or conduction electron are responsible for the transmission of current. Okay, this we know. Now the question is, what is dielectric? So dielectric, you can write, I am saying slowly, dielectric are substances which contains no or negligible number of free electrons. Means they are substances in which the number of free electrons is either nil or very less, so that
their electrical conductivity is almost nil. क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता किसके लिए है? फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए. जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं हो पाएगा. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी is almost nil. You can say it is a type of insulator. Okay, that is called what? The dielectric. So dielectrics are substances. Now what happens? So if we insert a dielectric, then what will happen? Then suppose previously when there was no dielectric, then the capacitance was C0, and on inserting the capacitance increased k times. The capacitance increased k times. So it means what? New capacitance is equal to k times the original capacitance. So therefore what will be the dielectric constant? Dielectric constant is equal to K. So what is dielectric constant? Dielectric constant you can say कि it is actually C by C0. क्या मतलब क्या हुआ कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस विथ ऑफ द कैपेसिटर विथ डायलेक्ट्रिक टू द रेशियो विदाउट डायलेक्ट्रिक. मतलब ये क्या है? ये जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है क्या? वो एक रेशियो है. किस चीज का? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विथ द डायलेक्ट्रिक बाय कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विदाउट द डायलेक्ट्रिक. मतलब डायलेक्ट्रिक के साथ और डायलेक्ट्रिक के बिना ये जो कैपेसिटेंस का जो रेशियो मिल रहा है, मान लो देखा जाए हम अगर डायलेक्ट्रिक के बिना हमको कैपेसिटेंस मिल रहा है 10 और डायलेक्ट्रिक डाल दे रहे हैं तो कैपेसिटेंस मिल रहा है 100. तो 100 by 10 क्या होगा? 10. तो इसका मतलब के का वैल्यू क्या हो गया? 10 हो गया. तो एयर का के का वैल्यू कितना होता है हमको पता है. एयर का के का वैल्यू 1 होता है. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट dielectric constant. And keep in mind the dielectric constant of metals, conductors. ये तो इंसुलेटर के रिलेटेड है. तो एक क्वेश्चन आता है कभी कभी आईसीसी में या सीबीएसई में कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हाट इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल कंडक्टर. तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कंडक्टर्स आर इनफाइनाइट, वेरी वेरी लार्ज. ठीक है, अच्छा, ओके. नाउ तो ये हो गया ऑल अबाउट. अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. देखो होता क्या है. अच्छा, उसके पहले बता दो कि जो डायलेक्ट्रिक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं. इसके बारे में आप लोग डिटेल्स में केमिस्ट्री में पढ़ोगे. वो क्या है? पोलर एंड नॉन पोलर. जैसे मान लो हम बात करते हैं HCl का. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर सब्सटेंसेस? इसमें क्या होता है? HCl, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, small negative charge. So what is the meaning of polar substances? Polar substances are those molecules, polar molecules are those molecules where the center of gravity of the positive charge and negative charge are separated by a small finite distance. मतलब जिनके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, डिस्टेंस होता है. उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल. जैसे मान लो HCl हो गया, वाटर हो गया, HF हो गया, HBr हो गया. दीज आर व्हाट? पोलर मॉलिक्यूल. ओके, बट सपोज आई टॉक ऑफ CH4, CO2. दीज आर व्हाट? नॉन पोलर. वेयर नॉन पोलर का मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ओवरलैप कर रहा है. इसमें है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव यहां पर भी है, लेकिन दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का जो गैप है वो या तो नहीं है या फिर ऑलमोस्ट निल. माने ओवरलैपिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. तो वहां पे डाइपोल नहीं बन पा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अच्छा. तो डायलेक्ट्रिक आर अप टू टाइप, पोलर एंड नॉन पोलर. नाउ व्हाट हैपेंस? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन? देखो होता क्या है. when a dielectric is placed in an electric field,
जब एक डाइलेक्ट्रिक को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, एक डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड इन द डाइलेक्ट्रिक. A dipole moment is induced in the dielectric. कब? When it is placed in the external dielectric field. Okay. So the external dipole moment induced, the net dipole moment, the net dipole moment induced in the dielectric along the direction of external electric field is called what? Electric polarization. So the phenomena of getting a dipole moment induced in the dielectric along the direction of electric field is called what? It is called the electric, that is called what? The electric dipole electric polarization. So what is electric polarization? Electric polarization means the net dipole moment being induced in the dielectric along the direction of the electric field. Okay. अब देखो होता क्या है. Let's see what happens. Suppose a capacitor. This is a capacitor. Okay. ये पॉजिटिव प्लेट इसका मान लो, ये नेगेटिव प्लेट, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लेट अस टेक इट टू बी E0. ओके, देयर इज नथिंग इन द नथिंग इज हियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0. नाउ व्हाट हैपेंस इफ आई प्लेस ए डाइलेक्ट्रिक in between the plates of the capacitor. Now this is what? A dielectric. Okay, it may be glass, it may be mica, it may be paper, it may be anything. Okay. Then what will happen? This positive side plate will induce a negative charge here, and all the positive charge will go to this side by the attraction of this negative plate. So we will see that here, what is the direction of electric field? Opposite. Let us call it EI, internal electric field. So when a dipole is placed, when a dielectric is placed in a capacitor, then you can see that there is a electric field developed inside the dielectric whose direction is opposite to the original electric field of the capacitor. Why? Because of the mutual induction. Okay. So what we are getting, let E, so net resultant electric field, or electric field or resultant electric field E is actually what? E0 minus EI. So what is E? E is what? The value of E will decrease. What we will find? क्या देखेंगे? अब देखो सिंपल बात में कि मान लो हम इसको नहीं रखे हैं, ये खाली है, तो हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है? E0 मिल रहा है. हम इसके अंदर में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिए तो क्या हो रहा है? हम क्या देखेंगे कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो गया. कितना हो गया? E0 माइनस EI. क्यों कम हुआ? बिकॉज ऑफ दिस ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस स्लैब के अंदर में बन रहा है. इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? घट गया. E0 से क्या बन गया? E0 माइनस EI. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E0 माइनस EI. तो नाउ इन दोनों का रेशियो अब हम इसको मान लो, तो इफ वी सी वी कैन शो दैट E इज इक्वल टू E0 बाई के. और V क्या होता है? E बाई डी होता है. तो V भी क्या होगा? V0 बाई के, है ना. हम लोग क्या पढ़े हैं पहले वीडियो में कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बाई डी, ये गैप. तो गैप तो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए V क्या होगा? V0 बाई के. तो व्हाट वी कैन सी, E is E0 by K and V is V0 by K. Now what is K? The same thing, the dielectric constant. So what we see that when a dielectric slab is introduced in between the plates of a capacitor, then the electric field strength or the potential difference
will decrease by a constant number, and that number is called the what? That number is called the dielectric constant of this dielectric. Okay, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? E will become E0 by K, V will become V0 by K, and this is what? The value will decrease and it will become okay. Okay, clear हुआ? तो E is equal to E0 by K. अच्छा, अगर इसको डिराइव करना है तो हम लोग एक तरीके से और डिराइव कर सकते हैं. कैसे? देखो, what we know, C by C0 equal to K. ओके, अब देखो, E by E0 इक्वल टू V by V0 बोल सकते हैं ना, क्योंकि बाई डी को काट दिए. अब V by V0 क्या होगा? नाउ V क्या होता है? Q is equal to C into V, right? Q is equal to C into V. तो V क्या होगा? Q by, तो क्या होगा ये? Q by, तो V क्या होगा बोलो? Q by C. ओके, तो Q by C, ये भी क्या हो गया? Q by V0. तो हमको यहां पे क्या मिला? ये C by C0 is equal to K. ओके, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? V by V0 और ये हो गया, तो C by C0 is equal to K. ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस is equal to that. तो व्हाट वी आर सीइंग, यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करना, तो एक्चुअली E by E0 प्रॉब्लम ये, तो E equal to E0 by K and V equal to V0 by K. तो और तो यहां पे क्या हो रहा है कि when a dielectric is inserted, then what is happening? The capacitance will increase, capacitance बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड और जो है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वो डिक्रीज हो जाएगा. अच्छा, now we are going to the last one derivation, last derivation of this video, and it is that what is happening if the capacitor does not occupy the whole space. मतलब मान लो ये दो प्लेट्स का गैप है D. अब अगर जो कैपेसिटर है वो थोड़ा इतना चौड़ा नहीं है, थोड़ा पतला है, उसका थिकनेस T है, T is less than D. ठीक है, ये जूम कर लेते हैं. तो अब देखो, अगर हम लोग शुरू में क्या जानते हैं? E0 is equal to सिग्मा by एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, पढ़ चुके थे इन द फर्स्ट वीडियो. वी सीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस इज व्हाट? सिग्मा by एप्सिलॉन नॉट. अब सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी Q by A, तो ये क्या बन गया? Q by A एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ओके. अब हम लोग जब इसके व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पुट हियर, जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना? क्या होगा? E0 by K. अब इसके पहले देखे थे. अब इसका मतलब क्या हो गया? Q by A, यहां पर K डाल देते हैं, K A एप्सिलॉन नॉट. तो ये क्या निकला? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पुट, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर डाइलेक्ट्रिक इज पुट. बिना डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, अब विद डाइलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है. हो गया. अब देखो, तो V क्या होगा? V का फॉर्मूला क्या होता है? E इंटू डी, है ना? सिंपल फॉर्मूला. तो यहां से D इंटू कर दो, तो QD बाई KA एप्सिलॉन नॉट. अब C क्या होता है? Q बाई. अब देखो, नाउ व्हाट इज द, तो ये E इंटू डी होता है ना, पर इसमें हम लोग ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे. क्यों? क्योंकि यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दो पार्ट का होगा. कैसे दो पार्ट का होगा? यहां पर E इंटू डी सिर्फ इसके लिए जो स्लैब वाला पार्ट है, और बाकी का पार्ट में तो डाइलेक्ट्रिक नहीं है ना, तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा? यहां का पोटेंशियल क्या होगा? V0 होगा. और यहां पे क्या होगा? तो टोटल पोटेंशियल क्या हो गया? प्लस तो E0 इंटू E इंटू डी, अब प्लस E0 इंटू क्या? ये कितना गैप हुआ है? ये गैप कितना हो रहा है? ये गैप हो रहा है D माइनस T. ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज नोट इट डाउन. तो व्हाट इज द गैप? तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? E0, तो E0 D माइनस T प्लस E इंटू डी.
तो E0 d माइनस टी प्लस E इंटू क्या होगा, यहां पे ये आएगा T। क्यों ऐसा आएगा? क्योंकि ये जो E है वो इस स्लैब के कारण का पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो E इंटू टी इतना आ गया। तो अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, अब वैल्यूज पुट कर दो। E क्या है, व्हाट इज E? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, अच्छा, इंटू K। तो यहां पर K भी आएगा और E0 में क्या आएगा, K नहीं आएगा, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस T, यहां पर T आ रहा है। तो कॉमन लेते हैं Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, तो क्या मिलता है, T बाई K प्लस D माइनस T। हो गया। अब हमको क्या करना है, C निकालना है। C क्या होता है, Q बाई V, मतलब ये चीज इधर आएगा और ये V नीचे आएगा। तो क्या होगा, ये नीचे डिनोमिनेटर ऊपर चल जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई T बाई K प्लस D माइनस T। तो A एप्सिलॉन नॉट बाई T बाई K प्लस D माइनस T इज व्हाट, क्या है, इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखे इसमें अभी तक कि हाउ टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए पार्टली फिल्ड कैपेसिटर। अब अगर मान लो यहां पर T और D बराबर है, तो T और D बराबर है तो क्या होगा, ये पार्ट हट जाएगा और ये K ऊपर से जाएगा। तो ये T की जगह D पुट कर देना, तो ये पार्ट अपने आप 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इससे हम लोग कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग एक सम्स करेंगे, एक क्वेश्चन एक सम करते हैं बिफोर गोइंग, और वो हो गया क्या, ISC का। नाउ दिस इज द सम इज इन ISC 2014 2017। देखो एक सर्किट दिया हुआ है, उस सर्किट का नेट कैपेसिटेंस पूछा है, इस सर्किट का नेट कैपेसिटेंस पूछा है। ओके, तो प्लीज वेरी सिंपल सम। यहां 3 कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस कितना कितना है, 3, 6 और 10। 3 म्यू फैराड, 6 म्यू फैराड और 10 म्यू फैराड। ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ISC 2017। अच्छा, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन देम, इनके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है। ओके, तो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन देम। ओके, अब देखो, तो ये दोनों पहले हम लोग क्या करते हैं, C1 निकालते हैं। C1 क्या है, ये दोनों सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है, तो पहले हम लोग C डैश निकालते हैं, तो क्या होगा, C1 इंटू C2, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होगा सीरीज का, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। तो 6 3 18 और 6 प्लस 3 9, तो कितना आ गया, 2 म्यू फैराड। ओके, अब इसके साथ, तो इसका मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना निकला, 2, उसके साथ इसको ऐड कर दो, तो टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, 10 प्लस 2 म्यू फैराड इक्वल टू 12 म्यू फैराड। तो ये क्या निकला, ये निकला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, अब पूछा है क्या, चार्ज ऑन C1। अब C1 पे चार्ज कितना है, देखो, मतलब C1 कौन सा है, इसका नाम दिया हुआ है लोग C1, C2, C3, तो इसका चार्ज पूछा है, इजी। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, देखो, हम पहले हम लोग अगर ये काम सोचते हैं कि जो चार्ज इसके अंदर जा रहा है वही चार्ज इसमें जाएगा, मतलब इस ब्रांच में सेम चार्ज फ्लो करेगा। तो ये ब्रांच का टोटल कैपेसिटेंस कितना है, 2 म्यू फैराड है, और यहाँ का पोटेंशियल, अच्छा फिगर हम थोड़ा इनकम्प्लीट बनाए थे, और यहाँ पर ये कनेक्टेड है विद द सोर्स, ठीक है, वो 50 वोल्ट, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वो है दैट इज 50 वोल्ट। तो ये 50 वोल्ट के साथ ये कनेक्टेड है। ओके, तो इसका मतलब इस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 वोल्ट। तो अब देखो, चार्ज ऑन C1 क्या होगा, इसको हम लोग नाम देते हैं Q1, क्या होगा, तो Q का फॉर्मूला क्या है, C1 इंटू V। Q का फॉर्मूला क्या है, C1 इंटू V। अब C1 क्या लोगे, C1 कितना है, इन दोनों का सेम, इसका नहीं लेना है, ये दोनों का टोटल इक्विवेलेंट, वो कितना हो गया, 2 म्यू फैराड, और V कितना है, 50,
तो क्या निकला, म्यू है ना, तो यहाँ पर लिख दो म्यू कूलम, मतलब 100 म्यू कूलम। दिस इज व्हाट चार्ज ऑन Q1। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखें कि हाउ टू what is the circuit diagrams of the capacitance, series parallel combination, and in the third video we will do the numericals. Okay students, till then have a nice day.